Okay, very good morning students. So we will start the another portion of your biomolecule is known as polysaccharides, or you can say it's carbohydrate. Okay, so I mean generally polysaccharides like polysaccharides I mean बुझी पारुचे saccharides means it's sugar, polysaccharides means the chain of sugar molecule, right? That is known as polysaccharides. So whenever we listen the term polysaccharides जोटा कि मैं आगरू पढ़ी सारीचे से गोटे जिन सब माइंड को आसीबा कथा कि polysaccharide means something that is come under the retented portion, right, or acid insoluble region, or that is found in the that is the macromolecule region. Clear बुझिएला तो ताको हमें कहबा polysaccharides. Okay, so कौन लिखा है रेड करबा थरे कि polysaccharides are the another class of macromolecules found in the acid insoluble pool. Clear बुझिएला कौन लिखिला कि polysaccharides are the another class of macromolecule. Okay, just a minute, let me change the color. Yeah, macromolecules is found in the acid insoluble pool or acid insoluble palette, or it is also known as retented region. Clear? Next, the polysaccharides are the long chain of sugar or carbohydrates. मैं just कहली कि बहुत सारा sugars रा molecules जैसे sugar, ये उठे sugar, suppose this is a sugar, एमती बहुत सारा sugar रा molecules मिसी की कौन करिबे polysaccharide formation करंती. Clear? Next, suppose this is sugar. See, this is the diagram of sugar. आमे यदि कहबा but this is starch. ए diagram को हमें कौन कहउचे? This is starch. तो माने हमें एठी कौन कंफर्म हेले कि कौन डिफरेंस रहिले या भितरे गोटे पॉलीसैकेराइड्स आ गोटे सुगर भितरे दैट पॉलीसैकेराइड्स ए गोटे यूनिट को हमें ग्लूकोज कहउचे. तो बहुत सारा ग्लूकोज यूनिट एका संगे हे कि कौन करचंती फॉर्मेशन करिसंती स्टार्च फॉर्मेशन करिसंती. देन तो माने मु टॉपिक को पूरा जीवा पूर्वरु मोटे जिंस कहउची देखो ये हला गोटे सुगर. जस्ट अ मिनिट, लेट मी show you something. Okay, just a minute. See, so this is a sugar, this is a molecule of sugar, this is a molecule of sugar. Okay, तो एमानक भितरे कौन अच्छे? This is the bond, this is the bond between this, this is the bond between this. So ए bond को हमें कौन कहबा? This bond is known as, ए bond को हमें कौन कहबा? This bond is known as glycosidic bond. Glycosidic bond. बुझिएला कि एमानक भितर जो बॉन्ड अछि दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ओके, माने ए होछि ग्लूकोज. माने हमें यदि कहिबे देखो कोन से जिंस को हमें बेले कोन कहउछि पॉलीमर कहउछि. ओके, देन पॉलीमर मींस देयर शुड बी ए बॉन्ड. लाइक हमें यदि एग्जांपल नबा देयर इज अ कार्बोहाइड्रेट. Okay, so carbohydrate means or polysaccharides. Polysaccharides means there is a group of sugar molecules and one sugar molecule is attached with another sugar molecule with the help of bond, and that bond is known as glycosidic bond, right? Whenever we talk about protein, the protein is the polymer, and what is the monomer of protein? The monomer of protein is amino acids. Okay, so one amino acid is connected with the another amino acids with the bond, and that bond is known as peptide bond or amide bond. Clear? Like that, whenever we talk about nucleic acid, okay, what you have already learned, there is the bond. So one nucleotide is there, the one nucleotide, and another nucleotide connected with a bond. There is a bond, and that bond name is known as phosphodiester bond. Okay, but there is an exceptional case is lipid. That we all know that lipid it come under the macromolecule or retented portion. आम एटा भी आगरो बुझे थिली कि lipid is not truly a macromolecules, but फिर भी से कौन आसुची retented portion रे आसुची. बुझेला और काहे की why ता रीजन भी मु तुमको ता एक्सप्लेनेशन भी देथिली. आउ लिपिड को आमे गोटे पॉलीमर कहंती नाही. व्हाई? बिकॉज आमे लिपिड कंप्लीटली पढ़ी सारलेनी. लिपिड रे आमे कोनोसे बॉन्ड विषय रे पढ़िले कि नो. सो लिपिड भितरे गोटे लिपिड मॉलिक्यूल्स आ गोटे लिपिड मॉलिक्यूल्स. लिपिड को जदि आमे ब्रेक डाउन करबा देन हमको कोन मिलिबो? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ओके, 1 ग्लिसरॉल्स एंड 3 फैटी एसिड हमको मिलिबो. सो 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स मिलिला पारे समान तांको भितरे कोनोसे प्रकार बॉन्ड न थाए. बुझियोचे? Clear? Next. Okay,
So what we will see that for if you will take any example like okay, so if you will take an example like cellulose is a polysaccharides. Okay, so for example cellulose is a polymeric polysaccharides consisting of only one type of monosaccharides, that is glucose, right? माने आमे यदि cellulose is a आमे normally कोठी जानी चे cellulose सेल आमे discuss करी सारचे. Can you explain me, can you tell me cellulose विषय आमे कोठी पढ़ी चंदी? Cellulose is the component of plant cell wall, right? Cellulose is the component of or chief component of plant cell wall. बुझिएला? तो plant cell wall is हमने cellulose जोड़ा होची, cellulose is a polymeric chain of your glucose. बुझिएला? Next, there are threads containing different monosaccharides as building block. Okay, there is a thread that से कौन help करूची माने हमें कही पारुची कि containing the different monosaccharides as building block. Okay, monosaccharides means which are made up of only sugar molecules, they are known as monosaccharides. Okay, बुझिएला? There is the simplest sugar ताकू आउ breakdown जदि हमें करिबा then से sugar रा characteristics ता भितरे हो किछि रहिबो नाही. बुझि होची क्लियर? लाइक जेमते हमें कहि परिबा केते कार्बन नु केते कार्बन रहि परिबा, जनरली मोनोसैकेराइड्स 3 कार्बन नु 7 कार्बन पर्यंत रहे. बुझि होची? नेक्स्ट look, this is the structure of cellulose. Okay, this is cellulose and see semane kemti made up of hechante. Okay, clear? Next, okay, see kon lekha hechi कि cellulose is a homopolymer. Okay, now एबे गोटे जिनस हमको माने डिस्कस करिया पे पड़िबो. सो व्हाट इज होमोपोलिमर एंड व्हाट इज हेटेरोपोलिमर? ओके ओके देखो मु कोन टर्म कहि छी सेल्युलोज इज अ होमोपोलिमर सा विषय फर्स्ट छाड़ मुझे बुझो छी से देखो homopolymer. Okay, another one is heteropolymer. बुझिएला? तो whenever we talk about homopolymer का विषय कहूचे homo means what? Homo means same, like same type of glucose molecule, the same type of molecule. This is homopolymer. I give you an example only. Okay, मु गोटे simply तुमको example दोची. बुझिएला? और हेटेरोपोलिमर्स मीन्स देठी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज किछि एमदे किछि यार कॉम्बिनेशन थिबा. बुझिएला? दिस इज हेटेरोपोलिमर्स. बुझि होची? तो हेटेरोपोलिमर्स आमे गोटे एबे पई आमे गोटे ही कंपोनेंट पढो, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकेन. कोन पढंती? पेप्टिडोग्लाइकेन. बुझिएला? एडा मु तुमको एग्जांपल देली, चिंता करिया दरकार नहीं, डोंट वरी अबाउट इट. बुझिएला? आई विल एक्सप्लेन यू. सो हेटेरोपोलिमर्स मीन्स हेटेरो मीन्स नॉट द सेम टाइम, नॉट होमो. सिंपली हेटेरो माने किछि डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स मिसी थिबे से जगह रे आ गोटे पॉलीमर्स फॉर्मेशन करिवे, दैट इज हेटेरोपोलिमर. क्लियर? बुझिएला? तो कोन कहि परिबा हेटेरोपोलिमर इज एग्जांपल इज हेटेरोपोलिमर एग्जांपल होची पेप्टिडोग्लाइकेन. बुझि होची? एंड पेप्टिडोग्लाइकेन हमें कोठी देखंती कि मने रिमाइंड करि पारुछो? It is generally found in bacterial cell wall. Okay, bacterial cell wall ले हमको कौन मिलिबो? पेप्टिडोग्लाइकेन. अब यार पेप्टिडोग्लाइकेन रो मोनोमर कोन? What is the monomer of peptidoglycan? That is NAG and NAM. NAG and NAM. So कौन हबो NAG and NAM रो फुल फॉर्म? N-acetyl glucosamine. Okay, देखो हम लिखि दोची N acetyl glucosamine and नाम पर N-acetyl uramic acid. Clear everyone? बुझिएला? ओके, एबे यदि हमें होमोपॉलीमर कथा माने डिस्कशन करिबा, व्हाट इज होमोपॉलीमर? होमोपॉलीमर एग्जांपल जेमते हमें कोन पाइबा? लाइक सेल्युलोज. एक्चुअली या पूर्वर मोटे जिनस बुझिया पे चाहूची तुमको देखो देखो होमोपॉलीमर को ना अगेन हमें दीटा पार्ट डिवाइड करते.
ओके लाइक दुईटा पार्ट नहीं ता एग्जांपल को बेटर अंडरस्टैंड करिया पई सिंपली ओके गोटे होची हमें कहि परिबा कि स्टोरेज पई होमोपॉलीमर स्टोरेज अनदर वन इज स्ट्रक्चरल बुझिला माने किछि जिंस अछन जो माने स्टोरेज करूछन किछि अछन हमें स्ट्रक्चरल बेसिस रे फाउंड करूचे बुझि होची तो स्टोरेज बेसिस रे हमें कोन कोन पांती एग्जांपल होची स्टार्च ओके अनदर वन इज इन्यूलिन बुझि होची एमाने होचंदी स्टोरेज अनदर वन इज ग्लाइकोजन ओके स्टार्च इन्यूलिन एंड ग्लाइकोजन स्ट्रक्चरल हमें कौन कौन पाइबा स्ट्रक्चरल बेसिस रे हमें पांती सेल्युलोज एंड काइटिन बुझिला मींस एमते हमें मन रखि परिबा बट दिस इज कंप्लीटली द एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर्स दे ऑल आर होमोपॉलीमर यदि क्वेश्चन आसीबो इज काइटिन इज अ होमोपॉलीमर यस इज सेल्युलोज इज अ होमोपॉलीमर यस ओके तापरे ग्लाइकोजन इज अ होमोपॉलीमर यस इन्यूलिन इज अ होमोपॉलीमर यस योर स्टार्च इज अ होमोपॉलीमर यस तो हमें को हिसाब रे ताको डिवाइड करूचंदी हम एथि पे डिवाइड करले स्टोरेज पे एथि पे डिवाइड कर देले लाइक फूड रे रिजर्व मटेरियल्स गोटे प्लांट रे तार फूड रिजर्व कोठी हुए को कंडीशन है कि रिजर्व हुए स्टार्च रे रिजर्व हुए हला स्टार्च है कि रिजर्व हुए बेसिस ऑफ तो कोन है परिबा सेति पे हमें स्टोरेज हिसाब रे ताको याद करि परिबा मन रखि परिबा सिंपली ओके देन होची इन्यूलिन okay I will explain what is inulin don't worry about it next is glycogen kon like amaro liver okay like amaro liver re kon kore plant ro सब जिंस स्टोर कोडी हुए glycogen condition स्टोर हुए okay next अभी कहबे structural kon मिलुची one is cellulose another one is chitin okay plant cell wall is made up of cellulose and chitin what is the fungal cell wall is made up of chitin okay the another one is so arthropods exoskeleton is made up of also chitin we will discuss about it don't worry okay एबे पई डायग्राम बुझिला एबे पई बुझिला कि जिंसो कोन बुझ पारुचो कि होमोपॉलीमर कोन और हेटेरोपॉलीमर कोन अबे देखो बुझे जे कोन लिखा आइची कि सेल्युलोज इज अ होमोपॉलीमर सेल्युलोज इज अ होमोपॉलीमर्स लाइक ऑल द मोनोमर्स आर इज सिंगल टाइप बुझेला एतबे सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स रो इन्वॉल्वमेंट थिबो वी कैन कॉल देम होमोपॉलीमर बुझियो जी नेक्स्ट कौन लिखा इस देखो द स्टार्च द हाउस ऑफ the storehouse of energy in plant tissue in the form of starch okay को फॉर्म रे रहउची स्टार्च फॉर्म रे रहउची द स्टोर्स हाउस ऑफ एनिमल एबे मु कहली स्टोरेज हिसाब रे ताको मन रखि परिबा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन क्लियर बुझिला नेक्स्ट see this is the diagram of glycogen this is the diagram of glycogen what is this ये सिंपली हमें कहबा ये होची गोटे डाई माने सेल्युलोज रो माने ग्लाइकोजन रो डायग्राम बुझी होची ये होची इट्स अ डायग्राम ऑफ ग्लाइकोजन बुझिला नेक्स्ट ए गोटे जिंस देखो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी जिंस एठी मार्क करो ओके लाइक आमे यदि गोटे ग्लूकोज रो स्ट्रक्चर बनेबा सिखिबा कोन सिखिबा गोटे ग्लूकोज यूनिट रो स्ट्रक्चर बनेबा आमे कोन जानि छै आमे कोन लिखोंती फार्मूला C6H12O6 याको आमे ग्लूकोज कोंती ता माने ग्लूकोज रे केतेटा कार्बन अछि 6टा कार्बन अछि ओके डायग्राम बनेबा okay this is a diagram of glucose which होची 1 2 3 4 5 6 okay इठी गला 1 2 3 4 5 6 okay तो हमें कौन लिखुतले दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन ओके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमें ड्रॉ करिबे सिखि गले कि हाउ टू ड्रॉ ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल
बुझीला तो कौन ग्लूकोज मॉलिक्यूल आम ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्र कर सारिबा परे आम एठी गोटे जिनस मार्क करि पारुचे कि एठी गोटे ग्लूकोज रो चेन अछि राइट अच्छी ना एठी गोटे कौन अच्छी ग्लूकोज रो चेन अच्छी दिस इज द चेन ऑफ ग्लूकोज दिस इज द चेन ऑफ ग्लूकोज बुझे होची बट आम जेते ग्लाइकोजेन स्ट्रक्चर देखुचे देयर इज अ स्ट्रक्चर ब्रांचिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करूची एठी गोटे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होची एठी गोटे कौन होची ब्रांचिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होची ब्रांचिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होची राइट बुझी पारछो देखो आमे कौन कहूची जेते बेले माने ये हैला गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये हैला गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ओके जस्ट अ मिनट लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम suppose if I'll draw a diagram like this see एठी हम सी कार्बन मेंशन करूनी माने ए जति की रीजन अछि सब जगह रे कार्बन ही अछि ओके डोंट वरी अबाउट इट ओके ये हैला गोटे ग्लूकोज गोटे पीस ऑफ ग्लूकोज सपोज मुझे आउ गोटे डायग्राम ड्रॉ कली ग्लूकोज रो एबे ग्लूकोज रो कार्बन रीजन गुडा को नेमिंग करिबा ओके चेंज कलर चेंज करिबा देखो बुझेला एठी नेमिंग करिबा बुझी होची क्लियर किछि इशू नहीं देखो एठी हम कोन बुझीबा एबे एठी गोटे जिनस मन रखिबो एमानंकु मु कोन कहिछि कि गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करिया पई ताको गोटे बॉन्ड रो फॉर्मेशन करिबा जरूरी बुझिएला मु कोन कहली गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को होल्ड करिया पई दे मस्ट बी फॉर्म ए बॉन्ड ओके एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम एठी केमती फॉर्मेशन करूचे एठी कोन होउछ देखो एठी कोन कहबा ये होचे 1 नंबर कार्बन रो OH अछि एठी 4 नंबर कार्बन रो OH अछि मुजु जगह गोल ब्लू से मार्क करि पारुछ ओके तो एठी कोन होय होची कोनोसी जगह रे बॉन्ड फॉर्मेशन करिया पई ओके देयर मस्ट बी डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर बुझिएला एठू कोन हबो वाटर रिमूव हबो तो एबे जदी ए स्ट्रक्चर को हमें देखिबा किछि एमती टाइप रो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हबो एठी राइट बुझिएला लाइक एमाने एबे कोन हेबे ए जगह रे एमाने कोन कहि परिबा कि लाइक एमाने ए जगह रे माने ए जगह रे एमाने OH न रहि कि से किछि एमती स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करबो बुझियो छी देखो ए पोर्शन दिस थिंग दिस रीजन बुझिएला एक्चुअली एमती अछंती बट यू दे हैव टू फॉर्म ए बॉन्ड से माने गोटे रो आ गोटे जन को होल्ड करिवे माने सेमान को भीतर बॉन्ड फॉर्मेशन करबे पड़िबो आ बॉन्ड फॉर्मेशन पाई वाटर रिमूवल इज नेसेसरी वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो एठी कोन हबो एठी वाटर रिमूव होची H2 रिमूव होची तो वंस H2 रिमूव हे सरला परे से किछ एमती स्ट्रक्चर रे कन्वर्ट होची बुझी होची सो दिस इज नोन एज द स्ट्रक्चर इज नोन एज याको हम कोन कहबा ने स्ट्रक्चर को हमें कहंती 1 एठी 1 होची ये 1 नंबर कार्बन ये होची केते 4 नंबर कार्बन 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड याको हमें कोन कहबा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बुझिएला सो एमती कोन हबो ए सब जिंस कंटिन्यू हबो गोटे पॉलीमर्स फॉर्मेशन करिया पे माने एमती गोटे माने यार जदी ये हैला जदी मु एबे कहबी एठी आ गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल नेबी अगेन से सेम जिंस फॉर्मेशन हबो एठी कोन हबो तमर ओ फॉर्मेशन हे जिवो एठी OH रहइबो एठी OH रहइबो OH रो वाटर रिमूव हे जिवो आ सेठी सिंपली तमरा माने ओ रहइबो खाली बुझी पारछो ना एठी OH रहिले बुझी पारछो H2 होची H2 माने दीटा हाइड्रोजन गोटे ऑक्सीजन रिमूव हे होची एठी दीटा हाइड्रोजन गोटे ऑक्सीजन रिमूव हे होची बंचिला कोन गोटे ऑक्सीजन तो तांको भितरे बॉन्ड फॉर्मेशन हबो क्लियर बुझिएला
तो ए स्ट्रक्चर को हमें कौन कहबे ये होची 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन फॉर्मेशन हैला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हैला बिकॉज 1 नंबर कार्बन नो 1 नंबर कार्बन आ 4 नंबर कार्बन नो जो माने जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अच्छी बुझेला से माने वाटर रिमूव कले सिंपली बुझे होची नेक्स्ट एठी किंतु कौन होची देखो इन दिस स्ट्रक्चर आमे तो ग्लाइकोजेन फॉर्मेशन करिबा ग्लाइकोजेन इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द ब्रांच स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर रे प्रेजेंट थाए ब्रांच स्ट्रक्चर रे प्रेजेंट थाए ब्रांच स्ट्रक्चर रे प्रेजेंट थाए ग्लाइकोजेन बुझी होची माने केमती एमानक भितरे जहा फॉर्मेशन हैला से देखो एटा होची 1 एटा होची 4 दैट इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बट एठी देखो एठी भी कोन अछि HOH बुझिला एठी अछि CH2H राइट ना अछि ना तो कोन हबो एबे आमे यदि नॉर्मल गोटे कथा रे पढिबा ऑब्वियसली एमानक भितरे एबे वाटर रिमूव हबो बॉन्ड फॉर्मेशन माने माइंड सेट करिवार अछि वाटर रिमूव हबो सिंपली से जगह रे तमरो वाटर रिमूव हबो तो एठी भी कोन हैला वाटर रिमूव हे गला बुझिला देन कोन हैला कि जदी माने वाटर रिमूव हे गला तो एठी कोन फॉर्मेशन है एमानक भितरे गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन हबो बुझिला तो ये कोन हैला 1 नंबर कार्बन ये हैला 6 नंबर कार्बन बुझिला तो एठी जो बॉन्ड फॉर्मेशन हबो ताको हम कोन कहबा एनीवन कोन हबो से बॉन्ड को हम कोन कहबा दैट इज 1,6 राइट ये होची 1 नंबर कार्बन एक फर्स्ट कार्बन दिस इज 6th नंबर कार्बन सो दिस बॉन्ड इज नोन एज 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड am I clear बुझिएला तो मन रखिबा को पड़िबो कि ग्लाइकोजेन इज जनरली प्रेजेंट इन ब्रांच स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर रे प्रेजेंट थाए ब्रांच स्ट्रक्चर रे प्रेजेंट थाए क्लियर गुड